ہمارے گجرانوالہ کے بہت بڑے کالم نگار ہیں، مزاح نگار ہیں، شاعر ہیں، پبلشر ہیں، بہت ساری خوبیوں کے مالک جناب ڈاکٹر امین جان صاحب آپ تشریف لائیں اور رسوم میں نے کوشش کی آپ نے سب کی کوئی بھی کر نہ پایا جو کیا ستام ساگر نے، کوئی بھی کر نہ پایا جو کیا ستام ساگر نے، نیا انداز کالم کو دیا ستام ساگر نے، ادیبوں شاعروں کالم نویسوں رہنماؤں پر، ادیبوں شاعروں کالم نویسوں رہنماؤں پر، سبھی پہ لکھ کے یہ پہنچا قلم کی انتہاؤں پر، زمانے بھر نے کان اپنے دھرے اس کی صداؤں پر، ہر ادبی گھاٹ کا پانی پیا ستام ساگر نے، نیا انداز کالم کو دیا ستام ساگر نے۔ یہ شاعر بھی بہت اچھا صحافی بھی یہ اعلیٰ ہے، یہ شاعر بھی بہت اچھا صحافی بھی یہ اعلیٰ ہے، مگر کالم نگاری مستند اس کا حوالہ ہے، اسی کے دم سے ہی شہر صحافت پہ اجالا ہے، جہاں سے بھی ملا یہ فن دیا ستام ساگر نے، نیا انداز کالم کو دیا ستام ساگر نے۔ سر کیا کہتے ہیں امین جان صاحب، میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ ہے انداز ہمارا جو کلام ہے وہ سارے لوگ سنتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، میں ممنون ہوں۔ میری بڑی بہن بیٹھی ہیں ہمارے گجرانوالہ کی، میں تو کہتا ہوں ہمیشہ میں نے کہا کہ یہ گجرانوالہ کی دوسری امرتا پریتم ہے، میری بڑی بہن ہے، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، شاعری میں اپنا خاص مقام رکھتی ہیں۔ عصمت نذیر صاحب ان سے التماس گزار ہوتے ہیں تشریف لائیں۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ اور چھوٹے بھائی کے لیے ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ سجایا گیا ہے، تو میں سب آنے والوں کو خوش آمدید کہوں گی اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اتنا ٹائم اس بچے کے لیے نکالا، یہ کہ حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے یقین۔ ہاں جی، چند اشعار میں نے اس کے لیے لکھے اور جلدی میں شاید لکھے۔ اس میں جو اصل میں یہ لیٹ پہنچا میرے پاس، میرا پروگرام ہے بس چند دن پہلے، 2 دن 3 دن کہتے ہیں آپ، اور وہ بھی میں گھر میں نہیں تھی۔ تجھ میں جو ذوق ادب ہے ساگر، تجھ میں جو ذوق ادب ہے ساگر، یہ ادب کے ہی سبب ہے ساگر، ایک مہذب سا بشر لگتا ہے، ایک مہذب سا بشر لگتا ہے، تیری تہذیب کا ڈھب ہے ساگر، اور سادگی طرز ہنر میں جھلکے، سادگی طرز ہنر میں جھلکے، کاوش حسن طلب ہے ساگر، اور فن کی گہرائی میں اترا ہے ابھی، فن کی گہرائی میں اترا ہے ابھی، اتنا سادہ سا لقب ہے ساگر، اور خود کو مصروف عمل ہی رکھنا، خود کو مصروف عمل ہی رکھنا، یہ لگن تجھ میں عجب ہے ساگر، اور یوں بھی انداز بیاں میں قسمت اس نے افکار کی چھب ہے ساگر۔ بہت شکریہ میری بہن، آپ سے تو یہی توقع ہوتی ہے۔ کیسر محمود گرایا صاحب اپنی سرکاری مصروفیات میں سے یہ بھی ٹائم نکالتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا پٹواری ہے، اگر میں شاعر نہ بنتا پٹواری بنتا تو کس طرح کھڑپتی ہوتا۔ جناب کیسر محمود گرایا صاحب۔ سب تو پہلے جناب صاحب نے اس خوبصورت شام کی بات ثابت کرنے کی اجازت نہ کچھ ستارہ ماہتاب ورگا سلام ساگر، ستارہ ماہتاب ورگا سلام ساگر، کہ روشنی دی کتاب ورگا سلام ساگر، ستارہ ماہتاب ورگا سلام ساگر، کہ روشنی دی کتاب ورگا سلام ساگر، اور ترکڑی وانگوں میں تول اکھر غزل بناوے، ترکڑی وانگوں میں تول اکھر غزل بناوے، بہور دی منڈ حساب ورگا سلام ساگر، ترکڑی وانگوں میں تول اکھر غزل بناوے، بہور دی منڈ حساب ورگا سلام ساگر،
बड़े तसलसल के नाल छपता है पर्चियां विच, बड़े तसलसल के नाल छपता है पर्चियां विच हजलमियां दे शबाब वर्गा सलाम साहब। चफेर अपने खलार दित्तियां सुवाशना, चफेर अपने खलार दित्तियां सुवाशनावां कि जिस तरह फुल्ले गुलाब वर्गा सलाम साहब। और मिलन वाला इस आमदा है बड़ा सुचज्जा, मिलन मिलान इस आमदा है बड़ा सुचज्जा कि शायराना अदाब वर्गा सलाम सागर। और ये दोस्तां दे दिनां च घर कर गया है कैसर, ये दोस्तां दे दिनां च घर कर गया है कैसर, ख्याल वर्गा ते खाब वर्गा सलाम सागर। सितारा है महताब वर्गा सलाम सागर के रोशनी दी किताब वर्गा सलाम सागर। बहुत शुक्रिया। कैसे मैं गुराया साहब की 5 किताबें साहब की 5 किताबें की मार्केट में और खूबसूरत तरीन शायर है पंजाबी, बहुत खूबसूरत असलूब है, इनके साथ भी हमें कोशिश रखेंगे। हाल में 1-2 दोस्त और भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इसमें की तरफ आए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सबसे पहले तो हमारे बाबाए दुनिया, बाबाए पाकिस्तानी जनाब मोहम्मद इसराइल एडवोकेट साहब, उनसे तमाश है कि वो तशरीफ लाएँ और इजहार क्या करें। जनाब मोहम्मद इसराइल एडवोकेट। तंजीम बकायदे सकाफत के सदर के तौर पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर जनाब दिलीप साहब, जनाब चेयरमैन तंजीम बकायदे सकाफत पाकिस्तान में जनाब अशरफ जमील साहब। और ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है अदब के लिए, इल्म के लिए और उसके फ़रोग़ के लिए आप लोगों को ये पसंद आएगी। और सागर के हवाले से तख्लीक, और फिर उसमें तख्लीक की कितनी किस्में, तख्लीक का अल्लाह ताला, और फिर ये तख्लीक करने वाले उसका कबीला, और उस कबीले का एक गुजरावाला से तल्लुक़ रखने वाले सद्दाम साहब। बहुत शुक्रिया। तकलीफ के हवाले से फिर उनके बच्चों के ऊपर तकलीफ, बच्चों के ऊपर तकलीफ, क्यों ये जो तकलीफ है ये अदम से वजूद में कोई चीज़ लाई जा रही होती है। अल्लाह भी अदम से वजूद मिलाता है, और ये किन को वजूद देता है? बच्चे। अच्छा, कौन बच्चे? जो 65% अपने 5-7 साल की उम्र में बन जाते हैं। आज हम जो हैं वो जो 65% बन गए थे जब मैं स्कूल भी नहीं गया था, 5-7 साल का था, तो उनके ऊपर अदब तख्लीक कर, ये इनकी इनफरादियत है। तंजीम बकाए सकाफत ने इनके लिए शाम मनाई है, एहतमाम किया है, ये हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक मिनट। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा नफ़े तुरे अंदाज में बड़ी बातें की हैं, आज भी इसी तरह। हमारे गुजरावाला का एक बहुत बड़ा हवाला है, कानून और इल्म अदब में अपना ख़ास मुकाम रखते हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला। इमरान आज़म साहब को याद होगा जब आपने एक नेचुरल फोरम बनाया था, आप सदर थे और जनाब सैयद इमरान हैदर नकवी एडवोकेट ये उसके सेक्रेटरी जनरल थे। तो इमरान हैदर शाह साहब वैसे तो लायक हैं और गुजरावाला के मुस्तनद-तरीन जो वकला हैं उनमें से एक हैं। ये हवाला है, लोग इन्हें इस बुनियाद पर वकील करते हैं कि उन्होंने मेरिट पे फैसला अल्हम्दुलिल्लाह ले लेना है। तो ये कानूनदान तो बहुत बड़े हैं, लेकिन कानूनी निगार बहुत बड़े हैं, मुकर्रर बहुत अच्छे हैं। तो मैं सैयद इमरान हैदर नकवी साहब, साबिक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरावाला से और सारी साहब के हवाले से बहुत शुक्रिया नाज साहब। अभी यकीनन सागर साहब की तो बात होगी। मैं सबसे पहले नाज साहब को ये खराज अक़ीदत पेश करूँगा कि उस दौर और उस माशरे में कि जब बदकिस्मती से अब तो ताज़ीम की रेफरेंस भी नहीं होती, उस दौर में ज़िंदा लोगों के साथ शाम मनाना और वो भी नौजवान लोगों के साथ शाम मनाना, ये मेरे भाई नाज साहब का ही तुरा इम्तियाज़ है। और ये बड़े लोगों और बड़े दिल वाले लोगों की बात होती है जो दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। तो ये मैं उनका हमेशा इस चीज़ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए वो सीढ़ी बने हैं, दूसरों को ऊपर
और ऊपर उठाने में हमेशा मददगार हुए हैं। इस बात पे जितना भी खराज तहसीन उनको पेश किया जाए वो थोड़ा है। और बाकी अभी इसराइल साहब ने फरमाया, मैं वाज़ह से मैं दास साहब की भी वकालत करते हुए कहता हूँ कि इन्होंने कहा जी उस वक्त मैं स्कूल नहीं जाता था बाबा जी जो तुसी माशाल्लाह बच्चे से उदो स्कूल होता ही नहीं सी। इस लतीफा दास साहब सुनाएंगे कि इसराइल साहब कितने पुराने थे। और अब जो है कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, मुख्तसर तौर पर तकरीबन कुछ 2 सफ़ात है, वो जो है अर्ज़ कर देता हूँ जो सलाम भाई के हवाले से। मेरे एक दोस्त ने एक दफ़ा हमारे मुआशरे में काम करने का तरीका बताया था कि एक हाथ से काम करो और दूसरे हाथ से डुगडुगी बजाओ और लोगों को बताओ कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर फिर भी लोग आपके काम की तरफ मुतवज्जो ना हो तो फिर काम छोड़ दो और दोनों हाथों से डुगडुगी बजाओ। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में अक्सरियत का तर्ज अमल यही है, मगर कुछ लोग सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह किए बगैर काम करते रहते हैं। सदाम सागर भी उन्हीं लोगों में से एक है। ये नौजवान एक समाजहत शख्सियत है, शायर है, नसर निगार है, कॉलम नवीस है, एक अदबी रिसाले नवाए अदब का मुदीर है और न जाने क्या क्या है। जब उनको बतौर शायर देखते हैं तो बहुत सादगी के साथ बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। सदाम सागर की एक गज़ल के चंद अशार मुलाजा फरमाइए। हकीकत पे मबनी है किरदार सारे, मेरे पास झूठी कहानी नहीं है। मेरी गुफ्तगू में रहा तू ही शामिल, तेरा तज़किरा बेमानी नहीं है। अभी इसको देनी है कुछ और मोहलत, अभी ये हुकूमत गिरानी नहीं है। वाह वाह वाह। सदाम सागर एक तरफ अक्ल व शऊर को झंझोड़ने वाली शायरी करता है तो दूसरी तरफ कामसिन और नापुख्ता ज़हनों की फिक्री आबियारी के लिए भी सदाम सागर का रोशन किरने के नाम से बच्चों से मुतल्लिका शायरी का मजमूआ क़ारीन और नाक़दीन से दाद वसूल कर चुका है। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू अदब के खूबसूरत शायर और नक्कार जनाब जान काश्मीरी ने सदाम सागर के मजमूआ कलाम रोशन किरने के मुतल्लिक़ अपने मजमून में तहरीर किया था। अभी जान साहब कहते हैं इसको बच्चों की शायरी पर मबनी किताब रोशन किरने इसकी बच्चों की शायरी पर मबनी किताब रोशन किरने का मुताला करते हुए बार बार हैरत से दो चार हुआ कि सदाम सागर खुद तो नौजवान हो गया है, लेकिन इस जालिम शख्स ने अपने हमजाद को 5-7 साल की उम्र से आगे नहीं बढ़ने दिया। रोशन किरने वैसे तो कौम के नन्हे मुन्नों के लिए नन्ही मुन्नी किताब है, मगर बच्चों के लिए तकलीफ करदा कई ज़मीन किताबों पर भारी है। किताब का मुताला करते हुए मरहूम प्रोफेसर पीयूब नज़र और मरहूम सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम की याद रह रह कर आती है। मेरे ख्याल में अगर सदाम सागर सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुद को बच्चों के अदब के लिए वक़्फ़ कर ले तो वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब बच्चों के अदब में पैदा होने वाला कला ना सिर्फ किसी हद तक पुर हो जाएगा बल्कि सदाम सागर भी तारीख के माथे का झूमर बन जाएगा। वाह वाह। बच्चों के लिए शायरी करने वाले इस नौजवान कलमकार ने नासिर जैदी, इदरीस नाज, राहत इंदौरी, आगा शोरश काश्मीरी, डॉक्टर जमील जालवी, इब्ने इंशा, साहब लुधियानवी, डॉक्टर वहीद कुरैशी, उस्ताद दामन, हबीब जालिब और मिर्ज़ा गालिब समेत उर्दू अदब की बहुत सी नामवर रोज़गार शख्सियात के फ़न और शख्सियत के मुतल्लिक़ भी बहुत खूबसूरत मज़ामीन तहरीर किए हैं कि जिनको पढ़कर इन शख्सियात के फ़न और शख्सियत के मुतल्लिक़ सैर हासिल आगाही हासिल होती है। इसके अलावा सदाम सागर बतौर कॉलम निगार भी अपनी शनाख्त रखते हैं और रोज़नामा जंग, एक्सप्रेस पाकिस्तान और बहुत से मुकामी अखबारात में सदाम सागर के कालम तवातुर से छपते रहते हैं। यूँ तो अदब में सदाम सागर के तमाम हवाले ही मोतबर हैं, मगर सदाम सागर बुनियादी तौर पर एक शायर है और अपने जज्बात के इजहार के लिए सदाम सागर ने कौमी ज़ुबान उर्दू और मादरी ज़ुबान पंजाबी दोनों का इंतखाब किया है। इनका अव्वलीन मजमूआ कलाम जो अशार पज़ीर हुआ वो भुलिया रामा है। भुलिया रामा के मुतल्लिक़ गुलाम इदरीस नाज के अल्फाज हैं। मैंने यहाँ पे बड़ा सोचा कसम से ये जुमला मुर्तज़ा के तौर पे कि मैं जब अपने भाई का ये जिक्र करूँ कि इदरीस नाज ने ये कहा तो उससे पहले क्या लिखूँ। नाज साहब आपकी ये मुताबिक मुझे वो अल्फाज नहीं मिले कि जो मैं पहले तारुफ के तौर पे लिखता कि जी आप
इतने बड़े नक्काद हैं, इतने बड़े शायर हैं, बस आप बड़े इंसान हैं, मेरे के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं थी, इसलिए मैं मतलब ताकि तो भुलिया रामा के मतलब जनाब इदरीस नाज के अल्फाज है कि सदाम सागर अपनी इस किताब के जरिए हमें उस जायके से रुशनास कराता है जिसकी लज्जत से वो बखूबी वाकिफ है। उसने नई राहें तलाश करने की बजाय गुमशुदा राहों का इंतखाब किया है और हमें उनकी सैर पर मजबूर करता नजर आता है। उन राहों का जिनकी मुसाफत तय करते करते कई आशिक़ सादिक अपनी आखिरी सांस तक खो बैठे और दारुल फना की राह ली। भुलिया रामा सदाम सागर का वो मुशाहिदा है जो जिंदगी के करीब तर है। ये उसका ज़ाती तजर्बा है जो मुस्तार लिए हुए तजर्बे से कहीं बेहतर है। अपने कलाम और कालम में पुख्तगी के हामिल इस खूबसूरत नौजवान कलमकार के लिए मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा, अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह जी। आप जब भी बोलते हैं कमाल बोलते हैं। स्टेज की जाने से मैं कदम बढ़ा चुका हूँ। अब उसका मेहमानाने खुशी ही हमारे हैं जिनको आपने सुना है और उसके बाद आपके लिए जो हमने दारों का बंदोबस्त किया है वो पेश करेंगे आपकी खिदमत में। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर सईद बादशाह साहब। डॉक्टर साहब मैं इससे पहले दारों की शुरुआत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब तो हमारे मुल्क का बड़ा नाम है। आपने बहुत सारे टीवी चैनल पे PTV पे ईद के मुशायरों में डॉक्टर साहब को सुना है। डॉक्टर साहब हमारे गुजरांवाला का सबसे मोहतर हवाला है शायरी का जनाब डॉक्टर सईद बादशाह साहब। और हमें खुशी है कि जब भी डॉक्टर साहब को ज़हमत दी है, ये बहुत मसरूफ होते हैं और ये वक्त इनके करीने का है, लेकिन उर्दू अदब के साथ, उर्दू और पंजाबी अदब के साथ ये कमिटमेंट है इनकी कि हमेशा इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। तशरीफ लाते हैं बेगुनाह तालियां जनाब डॉक्टर सईद बादशाह। सबसे पहले तो मैं उस अदारे का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सद्दाम के साथ शाम मनाई। सद्दाम के साथ मेरा 6-7 साल से ताल्लुक है। इन्होंने जब दुनियाए अदब शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। इनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत ताबेदार है। इतना मशहूर और इतना प्यारा लिखने के बावजूद इसकी गर्दन में कोई अकड़ नहीं है। जब भी कोई काम कहा इसने ऐसे ही किया जैसे इसका अपना काम, और बाद नामुमकिन काम भी इसने मुमकिन बना दिया। इसकी तबीयत बहुत अच्छी है, इसकी तरबियत बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला ने इसके कलम में बहुत जोर दिया है। नज़म हो, नसर हो, मज़ामीन हो, या ये आर्टिकल जो अखबार में छपते हैं सारी पढ़ता हूँ। उनमें एक रंगारंगी है। जब से लिखता है एक के बारे में तो पता चलता है कि ये इसी के बारे में, दूसरे के बारे में लिखेगा तो पता चलेगा कि ये उसी के बारे में। तो मैं आप लोगों की ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता क्योंकि मैंने भी लाहौर जाना है अभी। तो मैं बाद में चाहता हूँ सब इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर से थैंक यू वेरी मच। आप अपना एक बता सुना दीजिए, एक छोटा सा। तो याद ही नहीं। औरतें बैठी हैं, देवता सुना रहे हैं, कहते हैं ये अपनी उम्र छुपा। चले मैं ये नहीं सुनाता, मैं मारे चाहता पता नहीं आप क्यों झिझक गए या डर गए कि औरतें अपनी उम्र छुपाती हैं, तो उस पर जो आपने लिखा था वो सुना देते। जनाब इसराइल एडवोकेट साहब के हवाले से मैंने कहा कि मैं ही बताऊंगा। सर इसराइल साहब अपनी उम्र छुपाते हैं। मैंने अर्ज किया कि मैं PhD का थीसिस मैंने उसके लिए इनको चुना। तो जब इनमें मैं अपना थीसिस लिख रहा था मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, A to Z लिख दिया। इनकी उम्र पे आज मैं रुक गया। जब इनकी उम्र के बारे में तहकीक शुरू की तो सबसे पहले जो मुझे सबूत मिला इनकी उम्र के बारे में वो ये था कि जब कायदे गुजरांवाला तशरीफ लाए तो अमीर शहर 2 कितारों में लोग खड़े थे, तारुफ करवा रहे थे कि ये इमरान हैदर नकवी साहब हैं, ये एडवोकेट है, ये इमरान आज़म रज़ा साहब हैं, ये सदाम सागर साहब हैं, ये सार राणा साहब हैं। तो सबका तारुफ करवा रहे थे और साथ बता रहे थे कि इनका तारुफ क्या है।
ये क्या करते हैं। जब इनके पास कायदे पहुंचे, इससे पहले कि गुजरांवाला के जो उसको के अमीर शहर थे, वो इनका कारण चाचा इसराइल की हालत है। तो इससे 4 चीजें साबित हुई। सबसे पहली चीज ये साबित हुई कि गुजरांवाला तशरीफ लाए, जो लोग कहते हैं पैदल गुजरांवाला नहीं गए, एक तो ये साबित हुआ पैदल गुजरांवाला तशरीफ लाए। दूसरी चीज ये साबित हुई कि वो उन्हें बाई नेम और बाई फेस जानते थे। और तीसरी बात ये कि कायदे उनसे कम उस वक्त भी बड़े थे और चाचा जी क्या, चाचा जी इसराइल क्या। एक तो ये उससे अल्लाह सबूत मिलता है कि दुनिया के साइंसदानों ने इस बात पे था कि डायनासोर का ज़माना कितना पुराना है। जापान वाले कह रहे थे वो 3000 साल पहले था, पेरिस वाले कह रहे थे 3500, मतलब उसमें सामने का कोई मतलब ऐसा है लेकिन डायनासोर का ज़माना आप देखिए। उन्होंने क्या लिए गुजरांवाला का बना चाचा इसराइल, उन्होंने वो फिर गुजरांवाला है, इन्होंने आके पूछे आके चाचा जी डायनासोर का ज़माना की दोस्ती ऐना क्या यार, जब 7500 सदियां पहले सी ते उदों ना तांगा थोड़ा को नहीं सुनता, असी तांगे देंगे ना डायनासोर बन के स्कूल जाते थे। इससे अगला एक हवाला भी मिलता है, वो ये हवाला मिलता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम मिट्टी बना रहे थे तो कील नहीं उनसे बन रहा था, तो फिर सुनना पड़ेगा। एक हवाला ये है कि कील ने बना के जीते इसराइल, तो अगला एक हवाला भी मिलता है, वो ये था कि जब हाबील और काबील के दरमियान झगड़ा हो गया ना, पजे गए ना जाकर अल्लाह ताला ने सलाम का 2 मिनट बैठ के चाचा तेरे बड़े लग रहे ये बहुत जो लोग अपनी उम्र छुपाते हैं उनमें से एक इसराइल साथी है। नहीं वहाँ के बच्चे की शादी थी और बिला तकनीक में सलाम साबिर साहब से नमाज गुजार की। आज के साथ शाम में उनके बाद फिर इमरान अहमद साहब हमारे मेहमान खुशी और साझे सर, मैं चाहूँगा कि हम भरपूर तरीके से जरा सलाम साबिर साहब जिंदगी भर ली है मैंने दोस्तों की हर दुआ, जिंदगी भर ली है मैंने दोस्तों की हर दुआ, ऐसे थोड़ी ये जहां अपना हुआ है मेहमान। वाह वाह। कल्बी सफर के दौरान मिलने वाली तमाम तर कामयाबियों में मेरे महबूब वालिदैन की ढेरों दुआओं का समर है, जिनकी तरबियत ने मुझे इंसान की शक्ल अता की। आज अगर मेरे वालिद हयात होते तो मेरे नाम एक शाम पर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे होते। वालिद की वफात के बाद आज भी मेरे सर पर मेरी माँ की दुआओं की छाँव मेरे साथ साथ रहती है। मैंने अपने कलमी सफर का आगाज बहुत कम उम्री में किया। इस्लाहे सुकन की जरूरत ने मुझे मुतअद्दिद खूबियों के मालिक ख्वाजा आफ्ताब आलम के तवस्सुत से गुजरांवाला के शहरी और अदबी उफ़क़ पर चमकने वाले आफ्ताब वसीम आलम की बारगाह में पहुंचा दिया, जिनकी निगाहे इत्तफ़ाक़ ने मुझे बसीरत की रोशनी और शेर का शऊर अता किया। इनकी जवां उम्री में रहलत के बाइस मजीद इस्लाहे सुकन के सिलसिले में शेर व अदब के ताबिंदा व ताबनाक मीनार प्रोफेसर जलील आली के फिदाने सोबत से वो कुछ मिला जिसका असर बड़ी बड़ी किताबों से मुमकिन न था, और जिनकी तवज्जो ने मेरी शायरी को शेर की रूह से आशना किया। इसी तरह कालम नगारी में पाकिस्तान के महबूब कालम नगार डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी मरहूम के कालमों से मुतासिर होकर कालम नगारी का सफर इख्तियार किया। इस सफर में नासिर ज़ैदी, कुदरतुल्लाह चौधरी, इफ्तिखार मजाज जैसी शख्सियात ने मेरी रहनुमाई फरमाई। काकन नगारी से भी शरफ रहा। अब तक रोजनामा जहाने पाकिस्तान, रोजनामा जंग के अदबी सभा पार्टी और पर अब तक दर्जनों शख्सियात पर खाके लिख चुका हूँ। कालम नगारी का बाकायदा आगाज नुमाए वक्त अखबार के बानी हमीद निज़ामी की बरसी पर एक कॉलम लिखने से किया।
नवाए वक्त में कॉलम लिखने का सिलसिला 3 वर्ष तक जारी रहा। अदब लतीफ के मुदीर और पाकिस्तान अखबार के मकबूल कॉलम लगा नासिर ज़ैदी मरहूम से शर्फ़े मुलाकात के लिए एक रोज़ पाकिस्तान अखबार के मायानाज तजज़ियाकार और उस्ताद सहाफ़ी कुदरतुल्लाह चौधरी मरहूम के कमरे में हाजिर हुआ। नवाए वक्त में कॉलम ना लिखने की वजह जानकर फरमाने लगे, तुम आज से पाकिस्तान अखबार के लिए कॉलम लिखा करोगे। मेरे कॉलम का नाम सदाए सागर नासिर ज़ैदी मरहूम ने ही तजवीज़ किया। और ये नाम रखते हुए कहते लगे कि कुदरतुल्लाह चौधरी साहब ने कई बड़े कॉलम नगार और सहाफ़ी पैदा किए हैं। सदाम सागर तुम भी एक दिन बड़े कॉलम नगार बन जाओगे। पाकिस्तान अखबार में मेरा पहला कॉलम कसीरुल जौहर साहिब मुताला आर्ट फन मौला कवि हाफजा के मालिक और नामवर कॉलम नगार अदरीस नाज के साथ शाया हुआ। यहीं से नाज भाई के साथ मेरी रफाकत कायम हुई, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। इस दौरान मैंने इन्हें नाज परवर और नाज आफरीन कलमकार पाया। शख्सियत के एतबार से अदरीस नाज एक नजर अदबदोस्त साफ और महबे वतन आदमी है। पाकिस्तान अखबार में जब कभी कॉलम की अशात में ताकीर होती तो नाज भाई फरमाते कि सागर मैंने शामी साहब और इसाक भाई से कह दिया है कॉलम लग जाएगा। इनकी हौसला अफजाई की बदौलत में आज आप सब दोस्तों के सामने मौजूद हूँ। वगरना बहुत कम लोग कहते हैं जो खुद से बड़ा आदमी पैदा नहीं होने देते। नाज भाई की निजामत के दौरान और इस तकरीब में मुझ खाकसार की शख्सियत और फन के हवाले से जो कुछ भी मुझे और आप सबको सुनने को मिला वो यकीनन इन तमाम दोस्तों के दिल की आवाज़ और हकीकी मोहब्बतों का सबूत है। यही सब दोस्त मेरी जिंदगी का कीमती सरमाया है, जिनके खुशबूदार लहजे से अदा होने वाली बातें मुझे हर वक्त रवाना रखती हैं। पर जब कभी यही दोस्त महीनों तक नहीं मिलते तो इनकी यादों की खुशबू से हमारे दिलों की धड़कनें धड़कती हैं। अपने कलमी सफर के बारे में बहुत कुछ कहने को अभी बाकी है। वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए आप दोस्तों में अपनी गज़लों के बोल पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा। जब हवा का सहने गुलशन से गुजर होने लगा, जब हवा का सहने गुलशन से गुजर होने लगा, मेरी सांसों में भी खुशबू का सफर होने लगा। जब हवा का सहने गुलशन से गुजर होने लगा, मेरी सांसों में भी खुशबू का सफर होने लगा। जब से सांसों में बसी है तेरे लहजे की महक, जब से सांसों में बसी है तेरे लहजे की महक, दिल से तेरा तज़किरा शामो सहर होने लगा। अपनी पूरी बात भी कहने की है फुर्सत किसे, अपनी पूरी बात भी कहने की है फुर्सत किसे, सिलसिला अब गुफ्तगू का मुख्तसर होने लगा। दे रहे हैं दाद मेरे फन की अरबाबे अदब, दे रहे हैं दाद मेरे फन की अरबाबे अदब, इस तरह मैं शेर व फन में मुतबर होने लगा। बुत तराशे जा रहे हैं आदमी के रूप में, बुत तराशे जा रहे हैं आदमी के रूप में, शहर में अब आम हर सू ये हुनर होने लगा। बोझ अपने बाप को बेटे समझने लग गए, बोझ अपने बाप को बेटे समझने लग गए, अपने ही घर से बेचारा दर बदर होने लगा। और चंद शायरी जुल्मते शब में मेरी आंखें रुलाने के लिए, जुल्मते शब में मेरी आंखें रुलाने के लिए, एक मेरा घर ही मिला था क्या जलाने के लिए। जुल्मते शब में मेरी आंखें रुलाने के लिए, एक मेरा घर ही मिला था क्या जलाने के लिए। खुद में यादों का जहां आबाद रखता हूँ सदा, खुद में यादों का जहां आबाद रखता हूँ सदा, दिल में थोड़ी आप रहते हैं
बचाने के लिए। खुद में यादों का जहां आबाद रखता हूँ सदा, दिल में थोड़ी आप रहते हैं बुलाने के लिए। गम के गहरे बादलों का मुझको सरमाया दिया, गम के गहरे बादलों का मुझको सरमाया दिया, एक दरिया मेरी आंखों से बहाने के लिए। ये शेर जो था मैंने इमरान खान साहब के लिए लिखा था, मुझे बहुत पसंद भी लगा, तो ये मैं सुनाना चाहूँगा। मुझको मंजिल का पता रातों के जुगनू दे गए, मुझको मंजिल का पता रातों के जुगनू दे गए, घर से निकला हूँ वतन अपना बचाने के लिए। मुझको मंजिल का पता रातों के जुगनू दे गए, घर से निकला हूँ वतन अपना बचाने के लिए। मेरी किस्मत का सितारा टिमटिमाता है कहाँ, मेरी किस्मत का सितारा टिमटिमाता है कहाँ, हाथ देखा है नजूमी ने बताने के लिए। काम पर जाते हुए माँ ने मुझे आवाज दी, काम पर जाते हुए माँ ने मुझे आवाज दी, शाम से पहले कहा घर लौट आने के लिए। मैंने सीखा है जो लफ्जों को परोने का हुनर, मैंने सीखा है जो लफ्जों को परोने का हुनर, गीत लिखता हूँ ज़माने को सुनाने के लिए। जुल्मते शब में मेरी आंखें रुलाने के लिए, एक मेरा घर ही मिला था क्या कराने के लिए। ये भी गाना भी गाया ये शेर की जरूरत लगता है एक अदब और के सदाकत के अलम हर एक जगह लहरा दिए जाए, सदाकत के अलम हर एक जगह लहरा दिए जाए, सलीबों पे सभी मुजरम जहां लटका दिए जाए। सकूं के फूल खिलते थे मेरे इस देश में हर सू, सकूं के फूल खिलते थे मेरे इस देश में हर सू, लहू में फूल किसने फिर कहा लहरा दिए जाए। वहाँ इंसानियत की कोई कदरो मंजिलत क्या हो, वहाँ इंसानियत की कोई कदरो मंजिलत क्या हो, जहाँ पर लोग जिंदा खाक में दफना दिए जाए। वहाँ इंसानियत की कोई कदरो मंजिलत क्या हो, जहाँ पर लोग जिंदा खाक में दफना दिए जाए। अमीरे शहर से फरमान ये जारी हुआ है, अमीरे शहर से फरमान ये जारी हुआ है, अब गरीबे शहर के हालात सब धुंधला दिए जाए। निगेबान चोर ही ठहरे फकत इस देश में सागर, निगेबान चोर ही ठहरे फकत इस देश में सागर, सभी के नाम दीवारों पे अब लिखवा दिए जाए। रास्तों से इतने भी अनजान थोड़ी ठहरे हैं, रास्तों से इतने भी अनजान थोड़ी ठहरे हैं, हम तुम्हारे शहर में मेहमान थोड़ी ठहरे हैं। जिस जगह जुगनू सितारे टिमटिमाते हो सदा, जिस जगह जुगनू सितारे टिमटिमाते हो सदा, तिरगी के उस जगह इंसान थोड़ी ठहरे हैं। गूंजते हैं एक सदा से ये दरो दीवार सब, गूंजते हैं एक सदा से ये दरो दीवार सब, अब भी हैं आबाद घर वीरान थोड़ी ठहरे हैं। शहर के लोगों के चेहरों पर नदामत है रकम, शहर के लोगों के चेहरों पर नदामत है रकम, देख कर ये रहने हैरान थोड़ी ठहरे हैं। हर कदम पर आजमाइश, हर कदम पर मुश्किलें, हर कदम पर आजमाइश, हर कदम पर मुश्किलें, काम करने अब यहाँ आसान थोड़ी ठहरे हैं। क्यों चलाना चाहते हो अपनी मर्जी पर हमें, क्यों चलाना चाहते हो अपनी मर्जी पर हमें, आप हम पर वक्त के सुल्तान थोड़ी ठहरे हैं। क्यों चलाना चाहते हो अपनी मर्जी पर हमें, आप हम पर वक्त के सुल्तान थोड़ी ठहरे हैं। क्यों चलाना चाहते हो अपनी मर्जी पर हमें, आप
के सुल्तान थोड़ी ठहरे हैं। ऊपर ऊपर हलक से हैं सारी बातें सबके हाल, दिल तुम्हारा हम तुम्हारी जान थोड़ी ठहरे हैं। रास्तों से इतने भी अनजान थोड़ी ठहरे हैं, हम तुम्हारे शहर में